जा रहे हैं फ्रेंड्स के पास। तो फ्रेंड्स में सबसे पहले जा रहे हैं प्रतिज्ञा के पास। तो प्रतिज्ञा अभी JNU में है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं JNU। भाई लोग IIMC पर पता नहीं गेट के अंदर एंट्री मिलेगी कि नहीं। नाम गायब है। पूछ लो, पूछ के आ जरा। सामने IIMC है जहाँ पे हमारी दोस्त मिलेगी आके हमसे। देखो कहाँ है भाई, बुलाओ। तो देखो हमारे भूत बिल्कुल सच धज के आई थी। हमने कहा था क्या सच जाता है, सच्ची बताओ क्या सच लगा। देखो भारतीय जन संचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यही से हमारी दोस्त इस समय मास्क ऑन कर रही है। तो इसी से मिलने आए हम लोग। हेलमेट निकालने आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही है ना। अब ठीक है, बाल बाल थोड़ा ठीक कर लें। शादी के बाद अब मिल रहे हैं, शादी में तो देखो दीक्षा जी अंदर से बात करते आ रही हैं। बाल में खड़ी कर दो, पकड़ो यहाँ पर रिटर्न कर लो ना। ये कौन आ रहा है देखो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे लैंग्वेज चेंज हो गई। नमस्कार। ये देखो लग रहा है नहा के आई हूं। अभी नहा के आई हूँ ना। वाह, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है। और क्या ब्लॉग बन रहा है। ब्लॉग बन आओ। अरे भैया मैं ले लो, देखो अभी इतनी खुशी। ले बॉटल रख दो ना उसी में। पीना था ना। है नहीं कुछ पानी पीना पीते क्या। मास्क कॉम की छात्रा ये क्या कह रही है, मास्क हटा के चल। खैर ये जाएगा नहीं, परेशान ना हो। यार नहीं ऐसा नहीं है, ऑफिसेज खुल गए हैं तो मतलब समझ लो कोरोना खत्म हो गया। कोरोना खत्म हो गया, ऐसा किसने कहा। मेरा ऑफिस खुल गया है यार।
क्या हुआ? ऑफिस खुल गया है मेरा, तो कोरोना तो खत्म ही हो गया ना। चल इसको अभी चल मिलवा देती हूँ मैं, फिर अपना रिकॉर्डिंग करेंगे हम। तो अभी देखिए, तो हमने कॉलेज की इंट्रोडक्शन की। हाँ, ये सब कल ब्लॉग में आएगा। ओके। थोड़ा सोच के देना। अरे बोलो भाई। अरे बोलो, इनको क्या सोचना है, इनका काम ही है। हाँ। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा घूम के Hello everyone, this is Pratigya Yadav and today you are here in IIMC. Today my friends have come here to greet me and meet me in my campus. This is a very wonderful moment for both of us since after her marriage we are meeting for the first time. First time, yeah, exactly. So this how are is- you feeling? Like how is the campus life here? Like Yeah. what are you feeling? It's What are nice. your It's beautiful. The greenery here, it's like amazing. Huh. And the campus is also very beautiful. It more of it looks like I am Bangalore. Yeah, exactly. The architecture and हाँ. infrastructure is similar to all the हाँ. top campuses of And the if I talk about the local in our Kanpur, it's look like Poonchand Vidyanidhi. yeah. So that Porosh is from Poonchand Vidyaniketan itself only. अच्छा. Yeah. Nice. अच्छा So तभी this है. is the auditorium main where our orientation program happens, and you must have seen our pictures here in the stairs. Yeah. This is basically next to JNU, so the things are very liberal. You do not have someone who moral police you here. Like if you are roaming with someone or you are eating somewhere, so there is no one who will restrict you from entering some place. Not any kind of fragging, in starting, right? Exactly. So basically this building is for IIS officers. Their training happens here and they are being trained, their classes are being taken here. Oh. And this is our campus. I'll show you their hostels also. Come this side. They have their particular hostels also. Are those IS officers Yeah, or? yeah. Our hostel is in front of their hostel only, and DG sir's bungalow is just nearby. So have you visited anyone? Yeah, exactly. We have met many of them. So Okay. basically, they come to play badminton at the back court. Acha. So our hostel is that side only. So Uh-huh. one or the other way, we meet every day. Like there is a small conversation. We ask about their So much to induction. learn. Yeah. This is basically a short-term course, but this is going to change our lives. Yeah. This I think experience it's is a total of 9 months, right? yeah, exactly. It is of 9 months, and this experience will shape our future for teacher. I have studied in BU also, but this kind of exposure was not available. There. They're living with IS officers, having their exposures and their experiences. It's completely amazing. Yeah, exactly. Yeah. And moreover, this campus is situated in the Aravalli region. So Aravalli? yeah, Aravalli Hills. Please. So I'll show you Patasathi Rocks also. So that is a part of Aravalli Hills. Acha. Patasathi Rocks are famous in JNU. The topmost point of JNU and South. So this is a part of Aravalli forest only. And On that hill only? yeah, by cutting those rocks. Nice. So this side we have our canteen. This is kind of a small रंगमंच, amphitheater amphitheater. where we play practice or or- practice guitar. वैसे बता दें कि हमारी जो इसमें ऑडियंस होगी ये ज़्यादातर हिंदी समझने वाली होगी। अच्छा दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे। आ जाओ, ये कैंटीन है। आ जाओ, आ जाओ। ये देखो IIMC की कैंटीन है। अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो लोग खाना खा रहे हैं उधर पे, तो अच्छा नहीं लगेगा, पता लगे। नहीं हम लोग पहले तो यार ना फिर JNU अब में जिसको record नहीं करेंगे। समझ में आया वो ये समझो कि ये जो कैंपस है ये अरावली हिल्स पे साइड में उसी के लोकेटेड है, इसीलिए जो आसपास का आप देख रहे होंगे माहौल पूरा पत्थर वत्थर बिल्कुल जैसे पहाड़ों पे होते हैं उसी तरह के हैं। तो वही है कि कैंपस बहुत अच्छा है। यहीं से जो बड़े बड़े आप पत्रकार और रिपोर्टर जो देखते हैं वो ज़्यादातर IIMC से ही निकले हुए हैं। अगर आप जानते होंगे सौरभ द्विवेदी भी यहाँ के पढ़े हुए हैं, लल्लन टॉप, एंड इवन जो अभी रिसेंटली फिल्म आई है कौन सी द कश्मीर फाइल्स, तो कश्मीर उनका फाइल्स, प्रोड्यूसर जो है ही इज आल्सो फ्रॉम IIMC ओनली। अच्छा. तभी उनको बहुत बारीक नॉलेज थी काफ़ी जो See, once this branding and tagging of a topmost institute is important. Like Yeah, it affects a lot. it boosts your confidence. It चलो उसको not बाद में only रिकॉर्ड करते हैं अभी boosts. हॉस्टल। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये IAS क्वार्टर्स हैं जो यहाँ पे कोर्स के लिए आते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो भी स्टूडेंट्स या जो कोर्समेट्स वो सब कोर्स के लिए आते हैं यहाँ पे, यहाँ को वो लोग रहते हैं, उस साइड वो पढ़ाई करते हैं। ये IAS क्वार्टर्स बहुत अच्छा है, सुंदर। ये देखो इनका परपंच चल रहा है सामने, देखने में बहुत सुंदर है यार पूरा, मतलब देखो देखो पूरा नीचे रास्ता जा रहा है, कैमरा जस्टिस नहीं दे रहा होगा लेकिन बहुत सुंदर है। आईडी है पूछ रहे हैं।
ये वाइस चांसलर का घर है, वीसी का, अच्छा। डीयू के वीसी का। इसमें आधा जंगल है यार ये सारा जंगल है, मतलब यहाँ कोई वो नहीं है। मैं बातों में इतनी लग गई ना, एक्साइटेड ना। तो मैं हाँ क्या बता रही थी। आधा जंगल है। हाँ तो यहाँ वैसा ऐसा कुछ नहीं है कि सामने देखना है ना, हाँ, सब कोई बताना, दिक्कत- सामने देख के। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? ये कौन सी एम्बियंस जगह? मॉल। जेएनयू के अंदर है अभी तो। बाइक वाइक खड़ी करके अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एम्बियंस मॉल। ये पहले ही एम्बियंस मॉल कहाँ दिख रहे थे? आस पास कहीं तुमको दिख रहा है? चारों तरफ पत्थर वत्थर है। एम्बियंस मॉल इसके जो ये पत्थर है, इसके उस साइड एम्बियंस मॉल है, दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल। तो वहीं जा रहे हैं अभी तो। सुदीक्षा जी आपने कितनी गंदी ब्लॉगिंग की। नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। कौन से फेस में हम लोग? सस्ते ब्लॉगर फेस में। फर्स्ट वाला। अबे 4 ब्लॉग हो चुके हैं, अभी भी फर्स्ट ही में रहोगे? कुछ तो बढ़ो तो आगे। फेस फर्स्ट में है ना। अच्छा, अच्छा, एटलीस्ट 10 ठीक। तो एक्सपेक्ट करो ही। चलो चलो कहाँ जा रहे हैं? फिर से बता देगा। एम्बियंस मॉल। रिकॉर्ड हो रहा है ना? है ना? पक्का? हमें क्या पता, तुम जानो। यहाँ से हम लोग आए हैं, ये इस गेट से जेएनयू के, और ये सामने है एम्बियंस मॉल। अभी हम लोग ऊपर ब्रिज पे हैं, जो ये देखो दिल्ली की सड़कें। सामने आप मेरे पीछे देख रहे होगे एम्बियंस मॉल, दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है। अभी पता चला हमको, पता तो था लेकिन अब ज़्यादा कंफर्म हो गया। पहली बार इस मॉल में जा रहे हैं आज। किसी ने कहा था एम्बियंस ज़रूर जाना, हमने कहा चलो, अगर अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। देखो हाथ बांध के चल रहे, कहीं खोएंगे नहीं, भीड़ में खोया आदमी टाइप। दोस्तों का प्यार। हाँ ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए आप क्या चीज़? ब्लॉग के लिए। क्या रिकॉर्ड करना है? हाँ ये दोस्ती, अरे कॉपीराइट आ जाएगा, रुक जा। एम्बियंस मॉल अभी कुछ एक तुम साउथ दिल्ली में कहाँ रह रही थी? तुम तो उधर। हमारी कोई रीच नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं साउथ ही में तो जाता था। अच्छा अच्छा ओके। सुना भाई तो था। जिम्मेदार नागरिक मास्क लगाना भूल गया। अच्छा मैं फिर से हाँ, रुक जाओ, वो लोग निकल रीटेक। जाएगा। हम लोग, अरे हम लोग कहाँ रहे हैं? ये जंगलों के बीच से, ये हम लोग साउथ दिल्ली के 5 सारथी रॉक, यही है ना? हाँ, हाँ तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है दिल्ली का, साउथ दिल्ली का। तो उसी को देखने जा रहे हैं। कहते हैं वहाँ ऊपर से एरोप्लेन निकलता है तो बड़ा पास से लगता है, अच्छा लगता है। चल देखते। सुदीक्षा अबे तो जंगलों इसको साइड बंद कर इफेक्ट दो। ऑफ ब्लॉगिंग। तुम चलते रहो, दीक्षा ना देखा करो। ये अच्छा, चप्पल दीक्षा उतार दो पीछे। मेरे हिसाब से, तो मेरी चप्पल पहन लो। नहीं ठीक है, नहीं दिक्कत दिक्कत नहीं हो रही है, बस धीमे चल रहे हैं, बाकी दिक्कत नहीं एक है। बार जाके जूते पहन के आ जाए। अरे नहीं अब तुम भी यार। अब ये कट नहीं करेंगे भाई साहब, सीधी बात, अनकट जाएगी ये वीडियो। हम गिरे हैं अब इसमें तो मतलब गिरे नहीं, गिरते गिरते बच्चे। अब पॉज कर नहीं करेंगे ना भाई। आवाज़ सुनो, अंदर थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। देखो पूरा पूरा जंगल है भाई। देखो अरावली हिल्स हैं, ये अरावली हिल्स यहाँ से स्टार्ट होती है, राजस्थान तक जाती है। ये अभी पता चला, पता तो क्या, पता तो था ही, ज्योग्राफी पढ़ी। वो देखो प्लेन ऊपर से लाइट टिमटिमा रही है, नहीं दिख रहा है क्या?
दिख रहा होगा। सो दीक्षा जी, आप कुछ कहेंगी? नहीं, कुछ नहीं, अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान रखो, गिरो नहीं। ब्लॉगिंग तो होती रहेगी, जान हथेली पे लेके ब्लॉगिंग करने का मतलब नहीं है। आ जाओ। सो दीक्षा जी यही कहेंगी बस। ये देखो, कंधों से मिलते हैं कंधे, है ना। देखो ये सब लोग बैठे हैं उधर, अब आगे देख के चलना पड़ेगा। आराम से आना। तो रुक जाओ भाई, पहुंच जाए। पैर सलामत, हाथ सलामत, तो ब्लॉगिंग होती रहेगी। देखो ये दिखता ही नहीं। तो दीक्षा को पकड़ ले, वो बेचारी धीरे धीरे चल रही, हील पहने हुई है। मेरी शादी हो गई ये है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पीछे, उधर बहुत भीड़ है इसलिए जा नहीं रहे अभी। है। ऐसे वहाँ तो यहाँ पे फर्क नहीं है ऐसा, मतलब ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांति है बहुत। एक तो हम 3 ब्लॉक से शांति ही ढूंढ रहे हैं, हमको शांति नहीं मिल रही सही से। यहाँ अच्छी है। हाँ हाँ, जाएंगे नहीं हम। सुदीक्षा परेशान है, देख के एक बार गिर चुके हैं ना। आराम से। तो ये देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। वैसे तो पूरा अंधेरा काफ़ी हो चुका है। मेरी अंधेरा की जगह अंधेला बोलने की आदत है, तो अगर कहीं बोलते तो परेशान ना, वो मेरी आदत है। तो ये पीछे जो ये है, यही साउथ दिल्ली का टॉप मोस्ट पॉइंट है, जिसको हम भूल गए, कोई सारथी रॉक, पार्थ सारथी रॉक बोलते हैं। आसपास सारा इसमें जंगल है पूरा, नीचे खाई जैसी है ये, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। ये पूरा खाई है, अच्छा लग रहा है। सुदीक्षा लोग अपना दोस्त में गेट टुगेदर कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो हम उधर से डिस्टर्ब नहीं करने के लिए इधर आके अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, शांति है। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा अंधेरा हो रहा है इसलिए निकल जाएंगे। खैर ये JNU कैंपस के अंदर आता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आप खुद से कुछ ना करें उल्टा सीधा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा सीधा इन सेंस कि जैसे ये खाई है तो उधर ज़्यादा किनारे ना जाएं, ऊपर बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, खैर ये सब अच्छी बातें हैं। ज़्यादा टोका टाकी, आपको गेट पे पूछा जाएगा अगर आप यहाँ आते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं JNU में। अगर आप JNU के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ के बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के आ सकते हैं। और बाहर के लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो उनसे डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन किया जाता है, उनका वेरीफाई करते हैं कौन है, कहाँ से आ रहा है। सही है, चलो अच्छा है, बढ़िया जगह है ये जगह, बढ़िया है। JNU काफ़ी अच्छा है, घूमने लायक। इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है JNU, वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट कहना भी गलत नहीं होगा, अच्छा है। वो सामने जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जहाँ से उसका मतलब वहाँ पे लोग इसलिए आते हैं, एक तो शांति है, ऊपर से तो ये सामने इधर साइड कहीं ये जो वॉच टावर दिख रहा है, इसके पीछे साइड कहीं IGI है, तो उसका IGI का रनवे है। तो यहाँ से हर 2-3 मिनट बाद एक फ़्लाइट लैंड और टेक ऑफ करती है। लैंड करती है, टेक ऑफ का तो अभी हमने नहीं देखा। लैंड करते हो जैसे वो एक वहाँ से अगर देख रहे हैं वो फ़्लाइट आ रही है, वो फ़्लाइट यहीं इसी के ऊपर से जाती है, तो लोग लेट के देखते हैं ऊपर से प्लेन जाते हुए, अच्छा लगता है, बहुत क्लोज जाती है, मज़ेदार चीज़ है। तो अबे दोनों तरफ से वो देखो, सामने भी वहाँ भी फ़्लाइट लैंड कर रही है। ये IGI वैसे भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग होती रहती है लगातार। आपको यहाँ पे आसपास एरोप्लेन देखने मिल जाएंगे। अरे हम तो वैसे भी अभी तक एरोप्लेन में बैठे हैं, आगे बैठेंगे तो इसीलिए क्यूरियोसिटी यू नो। चलो, ये हम लोग कहाँ पे आए हैं? ये एडमिन ब्लॉक है इधर। हाँ, और ये नेहरू जी की मूर्ति है जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने लगाई थी। अच्छा। ठीक है, तो नेहरू की आइकॉनिक मूर्ति है, जहाँ पे लोग आते हैं, जो पिक्चर्स का बहुत ट्रेंड है, जैसा कि ये आप अभी इस भी मूर्ति देख पा की रहे हैं। बात कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है, बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल नेचुरल जैसे रहते हैं वैसे ही दिखाएंगे अपनी लाइफ को। कुछ ऐसा नहीं है कि अरे वो दिन भर लल्लन टॉप देखते हैं ना, थोड़ा उसका इम्पैक्ट आ गया। आपकी स्क्रीन के सामने एक स्टैचू दिख रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टैचू ने जी की आइकॉनिक
मूर्ति है ये। हाँ, कुछ इसके बारे में मतलब जो क्या हुआ था। लिखा हुआ है सर, अच्छा, ये थोड़ा जवाहरलाल हमारे नेहरू जी गाइड ने गाइड किया। का- और उस साइड उसका लिखा हुआ है ये। कि कब लगाया गया मूर्ति, किसने लगाया। तो जिसको जानना हो पढ़ के देख सकता है। और इसमें ये दूसरी साइड इसके ये लिखा हुआ है। इस स्टैचू को मनमोहन सिंह जी ने अनवील किया था। उनके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी भी थे और यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर करण सिंह। ये 2005 में मूर्ति लगवाई गई थी। इन्हीं के नाम से ये यूनिवर्सिटी फेमस है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर है हम लोग इस समय। और हमारे गाइड साहब क्या हमारे फ्रेंड, वो पोज बता रहे हैं कि किस तरह से पोज लेके फोटो यहाँ पे खींची जाती है। एक ट्रेंड बन गया कि वो हाथ ऐसे है तो उसमें हाथ लगा ले। तो जैसे चाचा नेहरू के नाम से फेमस जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ लोग फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं, तो उनकी याद में हाथ मिला के अच्छे से फ़ोटो ली जाती है। खैर, उनके एक हाथ में वो है। कुछ ज़्यादा ही हम स्लो और डिटेल में बताने लगे, इतना नहीं है। अच्छी जगह है JNU, घूमने लायक है। फोटो खींच लेती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति है, वो एडमिन ब्लॉक के जस्ट सामने है। और मूर्ति के जस्ट सामने, बिल्कुल मूर्ति के फेस के सामने, किसकी मूर्ति है सामने? स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है जस्ट सामने। और वो भी, उस पर भी लोग फ़ोटो खिंचाते हैं जाके। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। और कहते हैं यहाँ पे कि मतलब इस मूर्ति को लेके एक विवाद हुआ था ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और JNU के उसमें, कि ये मूर्ति लगवाने का एक और जो मेन कारण ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो JNU की मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति है, उसका नाम, उसका स्टेटस या उसकी लोकप्रियता कम करने के लिए ये मूर्ति लगवाई गई थी। क्योंकि दिक्कत ये थी कि वो थोड़ा साइड में पड़ जाती है और ये जस्ट सामने है स्वामी विवेकानंद, तो लोग इसको ज़्यादा देखते हैं और उसको नहीं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि मूर्ति क्या है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये भी हमारे देश का नाम दुनिया में विख्यात करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे, स्वामी विवेकानंद। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही इम्पोर्टेंट पर्सन है इंडिया के लिए। तो दोनों की मूर्ति है। अब ऐसा कि मैं ज़्यादा मैं कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि शायद हुआ है यहाँ पे। मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपना जो भी है। सामने विवेकानंद जी की मूर्ति है और इस पे एक विवाद हुआ था जो कि मैंने बता दिया। चलो, ये सामने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति रिकॉर्ड हो रहा है। निकले थे घर से प्रतिज्ञा से मिलने IIMC घूमने प्रतिज्ञा ने बहुत ज़्यादा चीज़ें घुमा दी। कहाँ घुमा दिया? IIMC और JNU और वो कौन सा मॉल गए थे हम लोग? एम्बियंस मॉल, यहाँ सब घुमा दिया। तो घूमते घूमते हो गई रात। अभी बज रहा है लगभग 11:30 और हम लोग अभी जिस जगह बैठे हैं वो बहुत जगह गजब की है ना। कहाँ बैठे जरा बताओ? हम लोग कहाँ बैठे? IIS रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस बोल सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स लोग आते हैं वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं रात में। और अभी भी हैं आसपास दूसरे रूम्स में। जैसे ये रूम है या ये क्वार्टर है, ऐसे उनके और तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का मौका एक तरह से, जो हम लोग यहाँ रुक पा रहे हैं आज। ऑल गोज टू प्रतिज्ञा। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। तो इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय माता दी और जय हिंद।